بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے، عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کی اخلاق نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے اسے گھر بیچ کر ازواج محترمات سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے؟ یا یہ فرمایا، کون سی اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی، میں خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو۔ اس نے کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئے اور بچوں کو سلا دیا، پھر چراغ کو درست کرنے کے لیے اٹھی، اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پھر دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ ہنسنے لگا ہے۔ اس موقع پر یہ آیات مبارک نازل ہو گئی اور لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ منہ دھوئے بغیر کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کثرت مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ ناظرین، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہوتا ہے۔ ہری مرچیں کھانے میں ضرور استعمال کریں، ہری مرچیں وٹامن سی کا ذریعہ ہیں۔ پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لینے سے پیٹ کی چربی 6 دن میں کم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہی دہی کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ نماز اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کو ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کے لیے قوت باک مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باک کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ دار چینی چبانے سے بھرا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہوتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرتا ہے۔ 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس سے چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ سینے کی بلغم سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم گھٹ جاتا ہے، ایسے میں سبز چائے میں ادرک ملا کر پی لینی چاہیے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر مسل لینے سے چہرہ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنے صبح کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ کیوں نہ ہو۔ اگر جسم پر کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آتا ہے۔
जलन की शिद्दत कम होती है। अगर खाना खाने से कबल 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खा ली जाए, खाना जल्दी हजम होता है। किसी जगह पर भी जख्म हो जाए तो लाल मेहंदी भिगो कर लगाने से जख्म ठीक होता है। रात के वक्त नाफ पर शहद लगाने से उम्र बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। नाज़रीन, अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 4 कतरे मिलाकर सुबह निहार मुंह पिएं, पेट की चर्बी और मोटापा दूर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी सफेद ना हो, निहार मुंह पानी और चीनी मिलाकर पीने से बाल सफेद नहीं होंगे। सिर्फ 2 चीजें खाने से चेहरा 18 साल जैसा जवान दिखाई देता है। बंद गोभी और दही की मलाई खाओ, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। जिस्म को पाक साफ रखें, गुस्ल और वजू एहतमाम से करें, गुस्सा और हसद से बचिए। सबको रोजाना माफ करते रहें, झगड़े खत्म कर दें। जिनसे आप नाराज हों उनके लिए भी दुआ करें। अगर मुमकिन हो तो उनको मनाएं। अगर माफी मांगनी पड़े तो जरूर मांग ले। इस दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर आप मक्खियों से तंग हैं तो घर में नीली लाइट लगा दे, आपको एक भी मक्खी नजर नहीं आएगी। अगर सर में शदीद दर्द रहता हो तो कभी पालक ना खाएं, इससे आपके सर का दर्द मजीद बढ़ेगा। आपको हमेशा वही से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा जहां आप पूरी तरह मुखलिस होंगे। अगर आपका रंग सांवला है तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाने से रंग गोरा होगा और नरम मुलायम हो जाएगी। रात सोते वक्त दूध में रोगने बादाम डालकर पीने से कब्ज खत्म होती है। ज्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ हो जाते हैं, कभी पथरी नहीं बनती। पखाना आए तो फौरी रोटी का लुकमा खा लिया करें, क्योंकि फिर पखाना करने में जोर नहीं लगता। हर 10 दिन बाद अंडे की सफेदी से पाँव का मसाज करने से पाँव खूबसूरत होते हैं। थोड़ी देर दोनों कानों पर उंगलियां डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ख्वाब में कसरत से इतलाम हो जाना तो इसबगोल दूध में डालकर पिएं। पेशाब के बाद कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लें। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ और गोरा हो जाए या चेहरे पर दाने ना हो तो रात को सोने से पहले अंडे के छिलकों को पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी को पी लें। इससे आपकी रंगत निखर जाएगी, दाने भी खत्म हो जाएंगे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपकी एक साहबजादी ज़ैनब के भेजे हुए एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि उनके लड़के निज़ाम में मुब्तला हैं और वो नबी करीम को बुला रही हैं। नबी करीम ने उनसे फरमाया कि तुम जाकर उन्हें बता दो कि अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और उसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। बस उनसे कहो कि सब्र करें और इस पर सब्र सवाब की नीयत से करें। साहबजादी ने दोबारा आपको कसम देकर कहला भेजा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपके साथ सहाद बिन मास और महज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े होकर फिर जब आप साहबजादी के घर पहुंचे तो बच्चा आपको दिया गया और उसकी सांस उखड़ रही थी जैसे पुरानी मुश्क का हाल होता है। ये देखकर नबी करीम की आंखों में आंसू भर आए। इस पर सहाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? नबी करीम ने फरमाया कि ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह भी अपने उन्हीं बंदों पर रहम करता है जो रहम दिल होते हैं। नाज़रीन, चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे, दूध में छुहारे डालकर पी लेने से चेहरा जवान नजर आता है। सालन में अगर मिर्चें ज्यादा हो जाएं, थोड़ा दही या दूध शामिल कर दें। अगर सोने से पहले अपने बालों को कंघी करके सोएंगे, इससे आपके बालों में गिरने की बीमारी नहीं होगी। शहद में मौजूद अज्जाई खुसूसियात जो दिल के मसाइल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। खजूर में पोटाशियम होता है जो दिल की धड़कन को मामूल पर रखने में मदद देता है। कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने के लिए किशमिश खाओ। विटामिन सी से भरपूर होने के बायस किशमिश कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करती है। फूलों के पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका शामिल करें, यह फूलों को ताज़ा और देर तक रखता है।
नाज़रीन, अदरक, हल्दी और शहद का मुरक्कब बनाकर रोज़ाना खाने से खांसी को कम होने में मदद मिलती है। खाने के बाद दालचीनी या पुदीने के पत्ते चुभाने से मुंह की बदबू खत्म होती है। सर में दर्द हो तो उल्टे पांव चलना शुरू करें, सर दर्द खत्म हो जाएगा। ज्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के चंद पत्ते चुभा लें या फिर पुदीने का कहवा बनाकर पी लें, इससे भारीपन महसूस नहीं होगा। सदका साहिल के हाथ से पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है। सदका करने से मुसीबतें टल जाती हैं। नाज़रीन, सुबह खाली पेट एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द खत्म होता है। 3 काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। एक, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ कर देना और किसी के गुनाहों पर पर्दा डालना। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करें, नींद जल्दी और पुरसकून आएगी। निहार मुंह 2 अखरोट खा लेने से बदन का दर्द और कमर का दर्द खत्म होता है। मुआज बिन जबल बयान करते हैं, एक मर्तबा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी ऐसी औरत के करीब जाता है जो उसके लिए हलाल नहीं, और जो मर्द औरतों के साथ करते हैं वो हर काम उसके साथ कर लेता है, अलबत्ता उसके साथ सोबत नहीं करता। तो नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तुम अच्छी तरह वजू करो, फिर उठकर नमाज अदा कर लो। रावी बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तुम नमाज को दिन के दिनों में हिस्सों में कायम करो और रात के कुछ हिस्से में भी। मुआज बिन जबल ने दरियाफ्त किया, क्या ये हुक्म उस शख्स के लिए मखसूस है या मुसलमानों के लिए मखसूस है? तो नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम मुसलमानों के लिए आम है। नाज़रीन, अगर बाल कमज़ोर हो तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमज़ोरपन ख़त्म होता है। अगर नज़ला ज़ुकाम से जान छुड़वानी है तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होता है। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें, उसे उबाल लें। जब उसका अर्क निकल जाए उसे ठंडा कर लें और उस सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले लीमू निचोड़ कर पी लेने से जिस्म में इजाफी चर्बी खत्म हो जाएगी, वजन कम होने लगेगा, जिस्म से तमाम फासिद मादों का खारिज हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द में आराम मिलेगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल में भी कमी आती है। पेशाब वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाने से खारिश में कमी वाक़या होती है। जिन औरतों की छातियां छोटी हों वो निहार मुंह वर्जिश किया करें। जीरे को भूनकर इस्तेमाल करने से भी लिकोरिया की अलामत में कमी आती है। अगर भुना हुआ जीरा ना खाया जाए तो जायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें चीनी भी डालकर खा सकते हैं। दूध को गाढ़ा करना है तो उसमें चंद दाने किशमिश डाल दें। लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे मजबूत होते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करता है। चावल वाले पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। बाकायदगी से चेहरे पर खीरे का मसाज करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे को पानी से गीला करके उस पर फटकरी से हल्का हल्का मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से जिस्म के तिल खत्म हो जाते हैं। पानी में हल हुई कलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर होता है। कलवंजी को सिरका में मिलाकर खाने से बलगमी व रफा हो जाता है। कलवंजी की धुनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। कलवंजी को सिरका में मिलाकर बर्स या फुलबेरी पर लगाने से बर्स दूर हो जाता है। कलवंजी एक चुटकी 8-10 कतरे खालिश शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कलवंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश दूर होती है। नाज़रीन, हर कलवंजी और आधा हिस्सा काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द ठीक होता है।
کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ موسلی، سفید موسلی، سیاہ کلونجی، سونڈ، ان سب کو برابر مقدار میں سالن میں ڈالا جائے، اعصابی دردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔